Hello children, welcome to your English class. Today we will do chapter number 6, The Milkman's Cow, and this story is from your Marigold NCERT book. And this story will tell you that we should be kind and loving towards animals. We should not be cruel to animals. And the moral of the story is being kind and loving is best, for force and strength can fail. And we can make animals do more things with kindness than with cruelty or force. We will learn that animals also need our love and kindness. So first of all we will do reading, and after reading I will explain you the chapter in Hindi. So let's start to reading. So children, let's start the story. First of all, we will do reading, and after that I will explain you the story in Hindi. So you can also open your book and do reading with me. The milkman's cow was in a bad mood. It sat in the middle of the road and refused to move. The milkman begged the cow to get up. The children are waiting for their milk to help them grow strong. Please get up, he pleaded. He pulled and tugged and prayed, but the cow wasn't going anywhere that day. Along came a policeman, his buttons and buckles gleaming bright. He said, twirling his long moustache. I will show you how to do it right. The policeman and the milkman pulled and tugged and prayed, but the cow wasn't going anywhere that day. Along came a grocer with bags of potatoes and peas. He said, I will move this cow with the greatest of ease. The grocer, the policeman, and the milkman pulled and tugged and prayed, but the cow wasn't going anywhere that day. Along came a wrestler, his muscles gleaming in the sun. He said, I have the strength of 10 horses, so this should be fun. The wrestler, the grocer, the policeman, and the milkman pulled and tugged and prayed. But the cow wasn't going anywhere that day. Along came the ice cream man, jingling his cart. Cool down, it can't be too hard. The ice cream man, the wrestler, the grocer, the policeman, and the milkman pulled and tugged, but the cow wasn't going anywhere that day. Along came a little boy. He began to grin. He said, these grown-ups, look at the mess they are in. It is not such a difficult problem. I learned in the second class that human beings eat rice and wheat and cows eat grass. He held out a sheaf of tasty green. The cow began to chew. He slowly led her to the side, for he knew what to do. The grocer clapped. The policeman twirled his stick in joy. The wrestler grinned. The ice cream man whooped at the cleverness of the boy. The milkman happily clattered his pail. Being kind and loving is best, for force and strength can fail. So this story is written by Vidya Pradhan. So now I will explain you the story in Hindi. Maybe you understood the story, but I will explain you it in Hindi. So milkman's cow. So बच्चों, मिल्कमैन्स काउ मीन्स एक दूध वाला है. ये उसकी गाय के बारे में स्टोरी है कि जो एक बार एक जो मिल्कमैन होता है, उसकी जो गाय होती है उसका मूड बहुत ख़राब होता है. वो बहुत उदास होती है, बहुत उस ख़राब मूड में होती है. तो क्या होती है, वो एक जाती है और जाते जाते रोड के बीच में जाके बैठ जाती है और वहाँ से हिलने के लिए बिल्कुल मना कर देती है. तो मिल्कमैन जो है उससे बहुत तो उसके हाथ पांव जोड़ता है कि प्लीज़ चलो, जो बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं तुम्हारे दूध के लिए,
आपका दूध उनके लिए उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, ग्रो करेगा, इसलिए वो दूध पीते हैं। तो प्लीज़ आप उठ जाओ और मुझे बच्चों के लिए दूध दे दो। प्लीज़ गेट अप, ही प्लीडेड। बहुत उसने मिन्नतें करी, उसने उसको खींचा, बहुत खींचा और बहुत प्रार्थना करी उसके सामने, लेकिन जो गाय थी वो कहीं भी हिली नहीं, ठीक। और वो कहीं भी जाने के लिए उस दिन तैयार नहीं हुई। तभी क्या हुआ, एक पुलिसमैन आया। उसकी जो ड्रेस पे जो बटन्स थे ना वो, और जो उसकी बकल होता है जो बेल्ट के आगे जो बड़ा सा स्टील का या बना होता है ना शो के लिए, उसको कहते हैं बकल। वो बहुत ही ब्राइट चमक रहा था, ग्लीमिंग ब्राइट, बहुत ही चमकदार था। उसने कहा ही सेड ट्विलिंग हिज लॉन्ग मुस्टैच। ट्विलिंग मीन्स अपनी मूँछों को घुमाते हुए उसने कहा, मैं बताता हूँ कि इसको सही तरीके से कैसे आप इसको अपनी गाय को उठा के लेके जा सकते हो, मैं बताता हूँ तुम्हें। उसने कहा आई विल शो यू। फिर क्या हुआ, फिर जो पुलिसमैन था, जो मिल्कमैन था, दोनों ने खींचा, दोनों ने उसके आगे प्रार्थना करी, उससे प्रेयर किया, प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ। बट द काउ वाज़न्ट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन फिर भी जो गाय थी वो बिल्कुल भी कहीं जाने के मूड में नहीं थी उस दिन। तभी क्या हुआ, वहाँ से एक ग्रॉसर आया। ग्रॉसर मीन्स सब्ज़ी वाला आया। उसके पास क्या था, उसके पास पोटैटोज़ थे, उसके पास मटर थे। उसने कहा कि मैं बताता हूँ कि इसको ये बहुत आसान सा काम है, और मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे गाय को हटा सकते हो। फिर जो ग्रॉसर था, पुलिसमैन था, मिल्कमैन था, दोनों ने खींचा उसको, बहुत खींचने लगे। लेकिन जो गाय थी वो उस दिन कहीं भी जाने को तैयार नहीं थी। तभी क्या हुआ, वहाँ से एक रेसलर आया। रेसलर कितना पावरफुल होता है, उसकी जो मसल्स थी वो भी बहुत चमक रही थी सूरज की रोशनी में। उसने कहा आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 10 हॉर्सेज सो दिस शुड बी फन। मेरे पास ना 10 घोड़ों की पावर है और ये मेरे लिए बहुत ही बाएं हाथ का खेल है ये, मैं तो एकदम से उठा दूंगा इस गाय को। फिर क्या हुआ, द रेसलर, द ग्रॉसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड। तो ये जो पुलिसमैन है, ठीक है, ये रेसलर है, ये देखो रेसलर सबसे पीछे है, ये मिल्कमैन है, ये सब इसको गाय को खींचने लगे, उससे प्रार्थना भी करने लगी। लेकिन जो गाय है वो कहीं हिले ही नहीं, वो रोड में बैठी रही, बट वो कहीं भी जाने को उस दिन तैयार नहीं हुई। Along came the ice cream man jingling his cart. Cool down, it can't be too hard. तभी वहाँ से कौन आया, क्योंकि रोड में बैठी थी तो कभी सब्जी वाला आया, कभी पुलिसमैन आया, और कभी आ गया वहाँ पे आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन ने कहा अरे रुको रुको, शांत हो जाओ, ठंडे हो जाओ, थोड़ा सा दिमाग को ठंडा करो, मैं इसको बताता हूँ, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, मैं इसको आराम से हटा दूंगा। फिर क्या हुआ, फिर आइसक्रीम मैन, द रेसलर, द ग्रॉसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन, इतने सब मिल के भी उसे खींच रहे थे। लेकिन जो काव थी, वो गाय थी, जो वो कहीं भी उस दिन जाने के लिए तैयार नहीं हुई। तभी क्या हुआ, वहाँ से एक आया छोटा सा बच्चा। उसने वो उनको देखा और उसको ही बिगेन टू ग्रीन मीन्स हंसा, वो हल्का सा, उसको हंसी आ गई। उसने कहा देखो देखो, ये बड़े लोगों को देखो तो ज़रा, ये कैसे इन्होंने यहाँ पे एक वो जमघट सा लगा रखा है और कैसे ये देखो क्या कर रहे हैं, और ये कोई इतना डिफ़िकल्ट काम थोड़ी ना है, इतना मुश्किल काम थोड़ी ना है। मैंने पढ़ा था जब मैं क्लास 2 में था, तब मैंने पढ़ा था कि जो इंसान लोग होते हैं वो राइस खाते, चावल खाते हैं, वीट खाते हैं, और जो जानवर होते हैं, जो गाय होती हैं, वो घास खाती हैं। तो उसने क्या करा, वो गया वहाँ से शेफ़ ऑफ टेस्टी ग्रीन मीन्स एक घास का गट्ठा लेकर आ गया, मतलब एक गुच्छा सा घास का लेकर आया, और वो उसने गाय को दिया। गाय उसको खाते खाते उसके साथ, उस बच्चे के साथ पीछे पीछे आ गई, और उसने बच्चे ने क्या करा, गाय को क्या करा, धीरे से साइड पे लेकर आ गया। और फिर जो सब्ज़ी वाला था उसने ज़ोर से ताली बजाई खुशी से, ठीक है। पुलिसमैन ने भी अपनी जो खुशी में अपनी, पहले वो मूँछें घुमाते हुए आ रहा था, फिर वो अपनी जो डंडा था उसको घुमाने लग गया, ठीक है ना। रेसलर को भी खूब अच्छा लगा, आइसक्रीम मैन को भी अच्छा लगा। और क्या हुआ, जो मिल्क मैन ने भी अपना जो क्लैटर्ड हिज पेल मीन्स दूध का जो डब्बा था वो उसको क्लैटर्ड मीन्स बजाने लगा उसे तेज के, और सभी के सब बच्चे के लिए ताली बजाने लगे। तो इस
स्टोरी का मॉरल क्या है बच्चों? इस स्टोरी का मॉरल ये है, बीइंग काइंड एंड लविंग इज़ बेस्ट फॉर फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन फेल। हम कोई भी काम किसी से भी कराना चाहते हैं तो हम उसको फोर्स से या अपनी स्ट्रेंथ से कराने के बजाय अगर हम उसे प्यार से कराएंगे तो वो आसानी से हो जाता है। सो दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, बीइंग काइंड एंड लविंग इज़ बेस्ट फॉर फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन बी फेल। जहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ, हमारी फोर्स फेल हो जाती है और वो काम हम प्यार से और काइंडनेस से करवा सकते हैं, चाहे वो इंसानों से करवाना हो, चाहे वो जानवरों से करवाना हो। सो दिस इज़ योर स्टोरी चिल्ड्रेन। So do reading practice at home and be safe at your home. Thank you. Till then, goodbye.